Hey everyone, hello and good afternoon. I hope you guys are doing great. My name is Amit Surana. Welcome to the second lecture on profit, loss and discounts in the Backbenchers batch. And this is our sixth lecture on the Backbenchers batch. So far we are done with percentages, 4 lectures on that, and yesterday we had seen the first lecture of profit, loss and discounts. Recap, we've seen the terminology, we've seen what profit and loss is and how to find it, we've seen how to find profit and loss percentage, we've seen how to find selling price. Yes, so this was till yesterday. Today what we're going to look at, today's agenda is how to find out the cost price in different cases, what is successive profit or successive loss, and how to find the effective profit or loss. What are the different special cases when it comes to profit, loss and discount. Okay, so my name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai with over 7 years of experience teaching quantitative aptitude, and I have trained about 2.5 lakh students so far. This is my Telegram group. Please join this Telegram group if you haven't already. All the notes, notifications, everything that we have planned for your CAT prep will be available on this group. चलो स्टार्ट करेंगे. हेलो समर्थ, हाय मृणल, हेलो विपुल, गुड आफ्टरनून एवरीवन. क्या हो गया भाई, भीड़ कम क्यों है? व्हाट्स गोइंग ऑन? एक बार रिमाइंडर भेजना पड़ेगा क्या? डिस्पाइट यू नोइंग दैट एवरी डे 12 o'clock दिस इज व्हाट वी डू. चलो ठीक है, भेज देंगे, वो भी कर लेंगे. ऑलराइट. ओके, तो कल तक अपन ने देखा था हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू गो अ स्टेप अहेड एंड ट्राई एंड डू सम क्वेश्चंस दैट डील विद फाइंडिंग आउट द कॉस्ट प्राइस. ओके, हाय एकमदीप, hello Jitesh, welcome everyone. Alright, so if you haven't downloaded the app yet guys, please go ahead and do that. Yes, Unacademy learning app को download कर लो, use my code Surana Live, आपको app पे available सारे free content पे access मिल जाएगा. Yes, chalo, let's go talk about, first let's talk about finding the cost price. Okay, let's say, for example, let's say the profit, yes, on a particular transaction is 20%. Yes, profit on a particular transaction is 20% and the item is sold at 240 rupees. Yes, the item is sold at 240 rupees. Then how will you find out the cost price? What would be the cost price, guys? There are 2 ways of doing this. One, using multiplicative factor. Yes, if there is a profit of 20%, then it's going to be what? Cost price plus 20% of cost price, or in other words we say that the selling price is equal to 100% of cost price plus 20%, that is 120% of cost price, or in other words in multiplicative factor it will be 1.2 times. Yes, or alternatively what becomes the cost price? Cost price is nothing but selling price by 1.2. yes, so what are you getting here? If you want to directly go for the cost price, all you have to do is divide the selling price with 100 plus the profit by 100 or multiplicative factor. Yes, so we'll directly use multiplicative factor. अपन ये 100 plus 200 minus सब नहीं करेंगे. So finding out cost price is simple. Selling price divided by the multiplicative factor. So in our case, what will be the cost price? अपने केस में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस विल बी 240 by 1.2 which is nothing but 200, है ना? Clear everyone? Yes, very good, beautiful. This is one way of doing. Is there an alternative way of doing? Definitely yes. Yeah, alternative way में अपन क्या यूज करेंगे? A by N rule. Yes, in alternative way we will be using A by N rule. Yes, look at this. कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीजेस बाय ए बाय एन. देन सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस डिक्रीज होगा बाय ए बाय एन प्लस ए.
Are you able to understand this? Yes, तो A by N क्या है यहाँ पे 20% profit which is 1 by 5. Yes, if there is a 1 by 5 increase, then there should be a 1 by 6 decrease. 1 by 6 decrease on 240 will be what? 240 minus 240 by 6. That is nothing but 240 minus 40. That gives us how much? 200 rupees again. Yes, very good guys, beautiful. Amazing work. Yes, superb. Yeah, so we can either do using A by N rule, or what do you know, cost price will be equal to selling price by multiplicative factor, where the multiplicative factor when it comes to profit will be 100 plus whatever is the profit percentage by 100. ठीक है? Can we do the same thing with loss? The same thing will follow with loss. We can use A by N rule, just that we'll have to use it in reverse, or the cost price will be equal to selling price by the multiplicative factor. In this case multiplicative factor क्या होगा? 100 minus the loss. क्यों minus? Why are we subtracting? क्योंकि loss है. ठीक है? Understood everyone? Hi Akbar Ali, good afternoon. Very good Soumya, very good Sakshi, super Prince, very good Navid. Great guys, amazing work. चलो start करेंगे, example question देखेंगे. Read this question, जल्दी से आंसर करो. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. Quickly answer this. They're saying a bicycle is sold for 1400. At what price was it bought if there was a loss of 10% incurred in this transaction? Jaldi. Okay, Abhishek says A, Abhinav says C, A, C, others. Vipul says B, alright. Nikun says 1260, which is D, ठीक है. Prince says A. Guys, read the question carefully, please. Please थोड़ा सा question ध्यान से पढ़ो. ये चारों आंसर सही आ रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा नहीं. Look at this, a bicycle is sold. That means the selling price is 1400, not the cost price. At what price was it bought by the seller? Cost price पूछ रहे अपन से. Cost price क्या है? If there was a loss of 10%, so loss क्या था? 10% का loss था. That means if we do it with multiplicative factor, अपना multiplicative factor क्या हो जाएगा? 100 minus 10 by 100, that is 90 by 100, 0.9 times. Are you understanding this? So what will be cost price? Cost price will be equal to selling price by multiplicative factor, which is 1400 by 0.9. Question से एकदम clear है. Question से it is very clear that the cost price is definitely more than the selling price, correct? क्योंकि लॉस हुआ है. अगर लॉस हुआ है, it is clear that the cost price is greater than the selling price. क्या कर रहे हो guys? Selling price अगर 1400 है तो cost price अपना अगर कम होगा तो profit हो जाएगा ना. Yes. So what is this? This is very close to 1555.55 bar. Closest answer will be what? Option C. Got it? जिन्होंने भी D या B बोला है, people who said D or B are definitely wrong, क्योंकि ये क्या है? This value is less than the selling price. गलत है भाई, cost price पूछा है. Yes. Let's try this by A by N rule. Can we quickly try this by A by N rule? Yes, they're saying what? There was a loss of 10%. मतलब price 1 by 10 कम हो गया. If the price decreases by 1 by 10, then in the terms of cost price, there should be an increase of 1 by 9. Yes. So what is cost price? Selling price plus 1 by 9 of selling price. Yeah. 1400 plus 1400 by 9. Are you able to understand this, guys? Hi, Anna.
Yes, what is 1400 by 9? 155.55. This is 1400. If I add this, what will I get? I will get 1555.55. Closest is 1556. ठीक है ना? Yes, ये बहुत सारे यहाँ पे जो भी है बाकी के आंसर चॉइसेस आर ट्रैप. प्लीज बी केयरफुल अबाउट देम. ठीक है, चलो अगला वाला ट्राई करो. Try this out. In a coffee shop, on selling 33 cups at 7,200, मतलब 33 cups at 7,200, ये तो एक बार के लिए स्टारबक्स को भी रुला देगा भाई. ऐसा क्या कॉफी बनाता है? अभी ये सेकेंड लेक्चर है. अभी दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, प्रिंस सेज द आंसर इज डी. Okay, so on selling 33 cups at 7,200, there is a loss equivalent to the cost of 21 cups. What is the cost price of each cup? Quickly try this. Question को समझो, read the question carefully, don't rush. Okay, आराम से करो, एकदम आसानी से हो जाएगा ये. Others? प्रिंस ने डी बोला है आंसर. और कोई? If you want, you can go reverse engineering on this. अगर आपको चाहिए आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी जा सकते हो. ठीक है, हाँ जी गाइज, आंसर. सौरभ, see there is no key, it's not like a lock के आप की बनवा लिए. ऐसा नहीं है, बस क्लासेस अटेंड करो. ये अपना 6th लेक्चर है. अपन ने we've just started last week. This is the 6th lecture. Start watching this from now and previous lectures को complete करो. Yes, the only key is to continue watching these lectures, practice, learn the concepts. That's very important. Okay, अकबर अली का आंसर ए है. श्रेयसी says D. चलो ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको. Shall we start solving this, guys? Now look at this. On selling 33 cups, 33 cups में बेच रहा हूं at there is a loss equivalent to the cost of 21 cups. मतलब क्या, इसमें से अगर मैं 21 cups का लॉस निकाल दूं तो मेरे को क्या आ रहा है? 12 cups का प्राइस आ रहा है. Yes, so this basically means what? I am selling 33 cups at the price of 12 cups. Do you agree with this, guys? 33 cups at the price of 12 cups. Yes, ये 12 cups का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 12 cups का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 7,200. कैसे? 33 cups का सेलिंग प्राइस इज द सेम एज 12 cups का कॉस्ट प्राइस. 33 cups का सेलिंग प्राइस 7,200 है, तो 12 cups का कॉस्ट प्राइस भी 7,200 हो गया. सो इफ 12 cups cost is 7,200, then 1 cup will cost how much? Cost निकाल रहे हैं, will cost how much? 7,200 by 12, that is 600 rupees. Getting it, guys? सिंपल ना? यस, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से सुनो. 33 कप्स बेचने पे ऑन सेलिंग 33 कप्स मेरे को 21 कप्स का लॉस हो रहा है. यस, दैट मीन्स मैं सिर्फ 12 कप्स के कॉस्ट पे बेच रहा हूं. मैं सिर्फ 12 कप्स के कॉस्ट पे बेच रहा हूं. यस, so what does it mean? It means that the selling price of 33 cups is the same as cost price of 12 cups. Selling price of 33 cups हमें बोल दिया 7,200, तो cost price of 12 cups भी क्या हो गया? 7,200. If 12 cups cost 7,200, then 1 cup will cost 600 rupees. Simple. 600 रुपए की एक कप कॉफी है भगवान.
अगर इसमें प्रॉफिट होता विपुल, अगर इसमें प्रॉफिट होता तो ये अपन ऐड कर देते, बस सिंपल, प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, सिंपल एज दैट। ओके डन। चलो नेक्स्ट, अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग से ट्राई करना है, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग इफ यू वांट। यस, रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या हो जाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग में 600 रुपीज अगर आपका कॉस्ट है, 600 रुपीज अगर आपका कॉस्ट है, सो फॉर 33 कप्स यू विल फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 कप्स यू विल फाइंड आउट विच इज 33 into 600। यस, सेलिंग प्राइस आपके पास है 33 कप्स का विच इज 7200। दोनों में कितना लॉस आ रहा है निकालोगे, दैट इफ यू डिवाइड बाय 21 इट विल सैटिस्फाई। ठीक है, reverse engineering, all right? Okay guys, there's a big news, big announcement for y'all. So far अपन combat में, so far in combat we used to fight for scholarship. Yes, this time apart from scholarship you can also win some exciting prizes like Amazon gift card, smart watches, iPads, wireless speakers and headphones. Yes, इन प्राइजेस को जीतने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द ऐप। यस, अगस्त 29 को 12 बजे रजिस्टर करना है आपको फॉर कॉम्बैट। यस, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सुराना लाइव। रजिस्टर करते वक्त सुराना लाइव यूज करोगे तो आपको यू विल गेट अ चांस टू विन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलो अगला ट्राई करेंगे, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। Vineet, 7200 is the selling price plus loss, not cost plus loss. ठीक है विनीत, चेष्टा, if you are into solving with equations then you can, but मैं हमेशा equation से थोड़ा दूर रहता हूँ, logic is better than equations। ठीक है, not everywhere of course but in most cases logic is better than equations। yes, if you can solve it using logic then there's nothing like it, one step and you're done। okay, wow विनीत, वेरी नाइस विनीत, अरे वाह। प्लस पे भी आ जाओ, प्लस क्लासेस भी चल रही है 5 बजे से। अक्षय सेज ए 37,500। चलो आई रीड द क्वेश्चन, आई एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, अ बिजनेस काउंसलर सजेस्ट दैट बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 6,000 per acre more, a 5% of profit can be yielded instead of 11% loss। What was the cost price of the plot of the land per acre? ठीक है, तो यहां पे अपन एक यूज करेंगे जिसका नाम है टाइमलाइन। याद है कल अपन एक क्वेश्चन किया था टाइमलाइन से, यस, बट वी वेरंट एबल टू सॉल्व इट ऑन वीडियो, तो मैंने नोट्स में चेंजेस करके भेजा है। ओके राइट, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। दे आर सेइंग उसको 5% का प्रॉफिट मिलता, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस ज्यादा मिलता compared to 11% loss on cost price. How if he had sold the land for 6,000 rupees per acre more? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये difference is 6,000? Can we say that this difference is basically 6,000 guys? Yes everyone, so how much will it become? यहां पे क्या पता चल रहा है, यहां पे इनका डिफरेंस, हियर परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ -11% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच, द 6,000 रुपीज, है ना, दोनों का डिफरेंस। यस, सो व्हाट आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, सो 5 + 11 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 6,000। So what will be the cost price? Cost price will be 6,000 by 16 into 100. This is once, this is 375 times. So what do you get? 37,500 rupees as the cost price. Got it? Yes everyone.
So it is that simple, it is that direct, that simple. Correct, Akshay. Super, very good. Chesta, Shreyashi, Soumya, Sparshi, Prince, Akshay, beautiful guys. Super. Yeah, nice. Chalo, we'll move on to the next question. So 37,500 is the right answer. Yeah. Alternatively, what you can do is directly find out 16% of these values. 16%, yes. 16% of 22,000 will be what? 16% of 20,000 will be 3,000. 3,500 के आसपास रहेगा ये value. So this is too small. This is too big. 40 का 16% is 6,400. So this is too big. This is also too big. A will be our answer. Reverse engineering से, ठीक है? चलो, now let's move on to the next concept, that is successive profit or loss. What does it mean? On 100, on the cost price, if first I get a profit of 10% and then again I get a profit of 10%, then the effective profit will be how much, guys? What will be the effective profit? 100 पे 10% is 10 rupees, giving us 110. On 110 there is a profit of 10 rupees, मतलब 11 rupees add होगा, 121. So overall कितना profit हो रहा है? 21 rupees का और 21%, है ना? ये अपन ने देखा था beforehand, we saw this before. Successive application of percentages. Do you all remember this? A plus B plus AB by 100, है ना? Effective change is A plus B plus AB by 100. Profit होगा if it is profit, then you will consider the percentage as positive. Loss होगा तो negative में ले लोगे. Simple. Understood? Yes, profit हुआ तो positive, loss हुआ तो negative. Use the same formula for them. Clear? Chalo, let's try out a question. Read this question carefully. These kind of questions you can do it using successive application, multiplicative factor or also assumption. ठीक है? If you do not know who Caitlin, Sansa and Arya were, we can't be friends, sorry. Also, if you are a fan of the last season, we can't be friends, sorry. Yeah, A, Akshay, Akbar Ali, Vipul are saying A. Alright, how about others? Navneet says A. Jagrati and Prince are saying A. Very good. Shreyashi and Akshay are saying A. Very good. Riya is saying A. Very good. Chesta. Very good. Soumya. So what is happening? Caitlin selling it to Sansa. Sansa selling it to Arya. Caitlin sells it at a profit of 12.5%. Sansa further sells it at a profit of 10%. If we use successive application, then what will we get? 12.5 plus 10 plus 12.5 into 10 by 100. Yes, this will give us what? 22.5 plus this will become what? 1.25, है ना? 0 0 cancel, 1.25. So this turns out to be how much? 23.75% profit overall. Directly from Caitlin to Arya, there is a profit of 23.75%. So what they're asking is, in terms of multiplicative factor, क्या हो जाएगा? So what will be the multiplicative factor? 100 plus 23.75, which is 123.75 in terms of percentage. In terms of decimals क्या हो जाएगा? 1.2375.
Yes, so what is our answer? Option A, $1.2375x dollars. Yes, you can also do this directly using multiplicative factor. Look at this, directly using multiplicative factor. First, there is a profit of 12.5, which is profit of 1 by 8. So if I increase 1 by 8, I will get 9 by 8. Then I am getting a profit of 10%. So 10% is 1 by 10. If I increase 1 by 10, it should become what? 11 by 10. Agreed? Yes. So this times x is my answer. What will it be? 99 by 80x. Which is how much? Directly 1.2375x. Got it? 99 by x में से आप 80 निकाल लो, you will be left with 19. 19 by 80, 16 is 2 times, then 3 left, 24, ऐसे होते जाएगा. Clear? Directly answer आ जाएगा. So if, look at me guys, listen to me, मतलब listen to me, ऐसा नहीं कि आप ढूंढने लग जाए कि कहाँ सर कहाँ से देख रहे हैं. If they ask for percentage, it's easier to do it with successive application. If they ask you for value, then either do it using multiplicative factor or do it using assumption. ठीक है? Clear? चलो, next question. Read this question carefully and then answer it. Okay? Don't rush. Vineet, these three are the women of Winterfell. Although all three were capable enough of ruling Winterfell, Winterfell बेचारा पूरा forget about Winterfell, the entire kingdom went into Bran's hand, which is so sad. And this is from Game of Thrones. Yes, Shruti. Yeah. Bran the Broken. Bran the Broken नहीं था उसका नाम था मेल शॉविनिज्म. पूरा सीरीज वो बैठ के कुछ नहीं किया है, पूरा सीरीज लोगों को भगाया है, बहुत लोगों को मरवाया है, बट लास्ट में वो किंग बन गया. मतलब सोचो. Sir, I was unable to attend Monday and yesterday session due to weakness. No issues, Shreyashi. If you've gotten vaccinated recently, recover properly and then you can watch the recording also. No issues. ठीक है? You're planning to watch GOT? Yeah, watch. अभी देखो, but don't follow any meme pages, don't follow any fan theories, full spoil कर लेंगे. Also don't follow me, मैं भी spoil कर दूँ. Watch. Vipul is saying D, Akbar Ali is saying B. All right. Rishu, no Rishu, नहीं अभी तक नहीं, देखना है, it's on my list. Prince and Akshay are also saying B. All right. How about others, guys? How about others? So let's read the question. First, let's read the question and understand what they're trying to say. Okay. A wholesaler gives to a retailer 6 candies at ₹1. Okay. Wholesaler क्या कर रहा है? Retailer को बेच रहा है at 6 candies for ₹1. Okay. So we have wholesaler selling it to the retailer at what? 6 candies for ₹1. Yes. The actual cost is 5 for ₹1. So इसका cost क्या है? 5 candies for ₹1. Clear? The retailer sells it to his customers at 3 for ₹1. ये retailer क्या करता है? आगे customer को बेचता है at 3 candies for ₹1. Yes. Had the wholesaler tried to sell them to the customers directly, अगर wholesaler directly customer को बेचता, yes, at what cost? At the same price as the retailer does. मतलब अगर 3 candies at ₹1 में बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होता, ये पूछ रहे हैं.
यस कितना प्रॉफिट या लॉस होता है ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलो गाइस, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टेल मी विल इट बी प्रॉफिट और लॉस क्विकली। सबसे पहले ये बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। यस, लुक एट दिस, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होलसेलर, उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 5 कैंडीज एट 1 रुपी, और वो कितने में बेच रहा है डायरेक्टली टू द कस्टमर? 3 कैंडीज एट 1 रुपी। यस, 3 कैंडीज एट 1 रुपी। अंडरस्टूड? सो वी डोंट रियली केयर, पूरे क्वेश्चन में वी डोंट केयर अबाउट दिस, ये नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट दिस, कॉस्ट सेलिंग, खत्म। समझ गए? अभी आप इसको इफ यू वांट टू डू इट यूजिंग values, you can do it using values. If you want to do it directly, you can do it directly also. ठीक है, either which ways it will work out. Yes, तो क्या हो रहा है? Listen to this carefully. Logic से मैं बता रहा हूं पहले, ठीक है? Logic से बता रहा हूं। Every time the wholesaler sells 2 candies, sorry, every time the wholesaler sells 3 candies, वो कितना बेच रहा है? 3 बेच रहा है। Yes, हर बार शॉपकीपर होलसेलर जब 3 कैंडीज बेच रहा है कस्टमर को, तो वो 2 कैंडीज अपने पॉकेट में डाल रहा है। सो व्हाट इज द प्रॉफिट? 2/3 of 100, दैट इज 66.66 बार परसेंटेज। ठीक है, ये लॉजिक से है। अगर लॉजिक से नहीं समझ में आया, डोंट वरी अबाउट इट, विल डू इट यूजिंग वैल्यूज ऑल्सो। ओके, कॉस्ट of 5 candies is 1 rupee. Yes, तो cost of 30 candies कितना हो जाएगा? What will be the cost of 30 candies guys? Into 6, so you multiply this also into 6, और ठीक है 30 नहीं 15 भी कर सकते हो, 15 into 3. Yes, so 3 rupees हो गया. This is cost. What about selling price? 3 कैंडीज एट ₹1, तो 15 कैंडीज वो कितने में बेचेगा? Into 5, so he sells it at 5 rupees, है ना? अंडरस्टूड गाइस? अपन 30 नहीं कर रहे, अपन 15 कर रहे हैं। तो 5 कैंडीज कॉस्ट 1 रुपीज, 15 कैंडीज कॉस्ट 3 रुपीज। करेक्ट? ये बहुत डार्क नहीं हो रहा, हाईलाइटर। क्लियर? सेम वे वी फाउंड आउट द सेम फॉर सेलिंग प्राइस ऑल्सो। यस, तो अभी क्या हो गया? अंडरस्टूड, कॉस्ट प्राइस अपना 3 है, सेलिंग प्राइस अपना 5 है, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी व्हाट? 5 minus 3, which is 2 rupees upon the cost into 100. So 2/3 into 100 is 66.66 bar percentage. Clear? You can do it with logic or you can do it with values. क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली, नॉट टू रश इनटू कंसिडरिंग द 6 चॉकलेट एट 1 रुपी वाला केस। इसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। होलसेलर इज कटिंग डाउन द रिटेलर, मिडलमैन को निकाल रहा है, डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने भी D 100% बोला है प्रॉफिट, प्लीज चेक। ऑलराइट, ओके, बिफोर वी मूव ऑन गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, आज कल से चालू हुआ था, टुडे 25th वी आर स्टार्टिंग विथ नंबर सिस्टम्स। यस, कल अपन ने कैलकुलेशन टेक्निक्स करा था, आज अपन नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं 5 PM से। यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स देन मूव ऑन टू एडवांस। दिस इज अ सुपर फास्ट कोर्स ऑन कैट 2021 के क्वांट पे। Yes, this is happening on Plus. Use my code Surana Live to get the subscription. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है on Plus, अगर आपने कर लिया है तो enroll into this course. We will be starting from downright basics. ठीक है? Clear? And also there are other batches you can join that will start today. ये सारे batches आज start हो रहे हैं, CAT 22 के लिए, CAT 21 के लिए and महाराष्ट्र CET के लिए. Okay?
अक्षय वैसे तो कम है, अक्षय वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आर वेरी लेस, 5 to 10% only, but indirectly the concepts that you learn in number system you can apply in algebra, coordinate geometry, geometry and mensuration, you can apply that in arithmetic also in a lot of places, permutation, combination, functions, बहुत ऐसी एरियाज है जहां पे नंबर सिस्टम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत बड़ा इंपैक्ट लाती हैं. Yes, directly to 5 to 10% questions only. All right. Chalo, let's look at this now. Let's talk about some special cases. Yes, let's talk about some special cases. Same profit and loss percentage. Yes, if there are same profit and loss percentage, दो cases. We have cost price being equal. If I say cost price of two articles are equal, ध्यान से सुनो, if I say cost price of two articles are equal, then and I am saying profit loss here is equal to the loss percentage here. Profit percentage पहले केस में, loss percentage दूसरे केस में equal है. Then what will be the effective profit or loss, guys? Effective profit or loss in terms of percentage कितना होगा बताओ जल्दी से. चलो मैं एग्जांपल देता हूं. लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज 100, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज ऑल्सो 100. ठीक है, इस पे अगर मेरे को 10% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पे अगर 10% का लॉस हो रहा है, तो इफेक्टिव प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा? 1%. कार्तिक, विपुल, सौम्या, अकबर अली, क्या गाइस? वही प्रॉब्लम है जब आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला में घुस जाते हो. मैं बोल रहा हूं कॉस्ट प्राइस इक्वल है भाई, मैं बोल रहा हूं कॉस्ट प्राइस इक्वल है. 10% का प्रॉफिट मतलब अपना सेलिंग प्राइस यहां पे 110 हो गया, यहां पे सेलिंग प्राइस इज व्हाट 100 minus 10, 90 रुपीज हो गया. ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज 200, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज 200. क्या कर रहे हो गाइस? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस. क्या हो गया गाइस? आप लोग बहुत जल्दबाजी में करते हो. प्लीज पेशेंस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ अ टेस्ट लाइक कैट. प्लीज डोंट रश इनटू इट. मैं बोल रहा हूं कॉस्ट प्राइस इक्वल है. यस, करेक्ट. सो इफ, तो अभी मैं ये इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है. इफ द कॉस्ट प्राइस आर इक्वल, if the cost prices of two articles are equal and the profit and loss percentage on them are also equal, it will be 0%. नवनीत, x square by 100 नहीं भाई, x square by 100 के बारे में बात ही नहीं कर रहे अपन. मत छेड़ो उसको बाद में बात करेंगे. वो कब होगा? x स्क्वायर बाय 100 आप तब लगाओगे जब आपका सेलिंग प्राइस इक्वल है. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आर इक्वल, तब आपका इफेक्टिव लॉस होगा. इफेक्टिव लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा. It will always be loss and it will be equal to L square by 100. This happens if the selling price is equal. ठीक है, क्लियर है गाइस? अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट द कॉस्ट प्राइस विल नॉट बी इक्वल. ठीक है ना? यस, क्लियर? ओके, नाउ सो ये बात समझ में आ गया. कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल है, अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज इक्वल है, तो इफेक्टिव प्रॉफिट या लॉस 0% होगा. सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इक्वल है, तब इफेक्टिव लॉस होगा L स्क्वायर बाय 100 का. ठीक है. सेकेंड केस व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर डिफरेंट. Yes, what will happen if the cost prices are equal? Cost price आपका equal है, but profit percentage is not equal to the loss percentage.
एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी तरफ लॉस हो रहा है और दोनों इक्वल नहीं है, तब क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द इफेक्टिव प्रॉफिट और लॉस? एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, ओके, इक्वल है दोनों का कॉस्ट प्राइस। इस पे मेरे को 10% का प्रॉफिट हो रहा, इसमें मेरे को 8% का लॉस हो रहा। यहां पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे 8% का लॉस हो रहा, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अपना सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110। यहां पे अपना सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 92, करेक्ट। सो व्हाट इज 110 प्लस 92? 202, अंडरस्टूड। यहां पे क्या हो रहा? यहां पे कॉस्ट प्राइस इज 200. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा, 2 रुपीज प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? 200, अंडरस्टूड। yes, which gives us what? It gives us 1% profit. yes, ये 1% कैसे आया? ये 1% कैसे आया? वेरी सिंपल, प्रॉफिट माइनस लॉस बाय 2 in terms of percentage. Understood? Profit minus loss by 2. 10 minus 8 is 2, 2 by 2 is 1, 1%. समझ गए सब लोग? Yes, everyone? Okay ना? Everyone say yes if you understood the special case. Yes. So when cost prices are equal, profit percentage, loss percentage are not equal, then it's the average of the profit and loss ka difference, okay? Now let's take the second scenario where the selling prices are equal. Yes, when the selling prices are equal, अगर selling prices equal है तो एक बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला है, बट मैं आपको बताएगा, ठीक है? When the selling prices are equal and profit percentage is not equal to loss percentage, then your effective profit और loss का एक बहुत गंदा सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो, ओके? So your effective profit or loss will be equal to, फॉर्मूला देखो, 100 into x plus y plus 2 times x into y divided by 200 plus x plus y. yes, यहां पे x क्या है? ये गंदा सा फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला नहीं दिख रहा आप लोगों को? आप लोगों को शायद फॉर्मूला नहीं दिख रहा, नहीं? मैं थोड़ा सा हट जाता हूं. आई विल मूव फ्रॉम द स्क्रीन, गिव मी 1 सेकेंड. मैं अपनी थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देता हूं ताकि मेरे को पता चले कि मैं क्या लिख रहा हूं, है ना? चलो, आई हैव मूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन. yes, look at this. in this case आपका x प्रॉफिट परसेंटेज होगा, लॉस y लॉस परसेंटेज होगा. जस्ट दैट यू विल हैव टू सब्सटीट्यूट, लॉस के टर्म्स में आपको नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, दैट्स इट. प्रॉफिट के टर्म्स में पॉजिटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, लॉस के टर्म्स में नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है? ये फॉर्मूला देख लो, अगर याद होगा तो ठीक. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दिस, ओके, अदरवाइज यू कैन डू इट इन ट्रेडिशनल मेथड. यस, थोड़े एग्जांपल्स ट्राई करेंगे गाइस. शैल वी ट्राई सम एग्जांपल्स, लेडीज, जेंटलमैन? Also guys, if you haven't hit like on this video, please do it, okay? अगर आपने वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं करा है, क्योंकि लाइक सिर्फ बहुत कम आया है, लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो. अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्राई करेंगे. सो रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, रीड इट केयरफुली एंड आंसर इट. लेट्स सी हाउ मेनी कैन आंसर दिस. ट्राई करो गाइस. Two objects are sold at the same price. sold माने selling price same है, ठीक है?
one at a profit of 10% and the other at a profit of 32%. What is the effective profit percentage? पूछ रहे हैं. Cheers Samarth. Cheers buddy. Akbar Ali says A. Others? So what is the condition? Selling prices are equal. Yes. एक पे प्रॉफिट हो रहा 10% का, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा 32% का. यस, तो व्हाट इज x अपना 10% हो जाएगा, y अपना 32% हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव. व्हाट इज आवर फॉर्मूला गाइस? इफेक्टिव प्रॉफिट और लॉस विल बी इक्वल टू हाउ मच? फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर अपन ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, वो मैं समझाऊंगा. ठीक है. इट इज व्हाट? 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 times xy divided by 200 plus x plus y. Yes, 100 into x plus y, 10 plus 32 which is 42 plus 2 into 10 into 32 divided by 200 plus 42. Yes, how much will this come up to? 4,200 plus 640 divided by 242. Are you all able to follow this guys? फॉर्मूला फॉलो कर पा रहे हो? नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो, मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा. ओके, सो 4,200 plus 640 is 4,840 divided by 242. करेक्ट? यस, तो इसको 242 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया ये? 2 times 484, 20 times. सो ये क्या है? 20%. पॉजिटिव में है वैल्यू, मतलब 20% का प्रॉफिट है. नेगेटिव में आएगा तो लॉस होगा. क्लियर? यस एवरीवन. सुनिकेत buddy, this is for CAT 2021, but if you want you can attend this. ठीक है. सक्सेसिव से नहीं कर सकते नवनीत, सक्सेसिव से नहीं कर सकते, यहाँ पे सक्सेसिव पे नहीं कर सकते. ये अलग प्राइस है, ये अलग प्राइस है, अलग अलग पे अप्लाई हो रहा, साथ में नहीं हो रहा. ओके, what will be the alternative guys? Alternative will be, let's assume selling price of the first case is 100, selling price in the second case is also 100, क्योंकि दे रखा है इक्वल है. ठीक है. हाँ करेक्ट चेष्टा. यस, हाँ चेष्टा. किसी भी फॉर्मूला में अगर लॉस है तो नेगेटिव लेने का है. करेक्ट. Yes, so in this case what happens? पहले केस में 10% का प्रॉफिट आ रहा, दूसरे केस में 32% का प्रॉफिट आ रहा. तो यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100 by 1.1. यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100 by 1.32. समझ रहे हो? Now we can go for approximated answers. Yes, 100 by 1.1 कितना होगा? 90.90. कॉस्ट प्राइस 2 अपना कितना हो जाएगा? 100 by 1.32. ओके, ये मैं बता रहा हूं आप ट्रेडिशनल मेथड में कैसे करोगे. 75.75. यस, तो ओवरऑल कॉस्ट कितना हो गया? 75.75 प्लस 90.90. ओवरऑल कॉस्ट इज 166.65. ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज 200. तो अभी अगर मैं प्रॉफिट या लॉस देखूंगा तो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है? 200 माइनस 166.65. करेक्ट, which is 33.35 divided by 33.35 divided by the cost price 166.65. ये सब कुछ अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास, क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं याद. ठीक है.
Yes, so this will be what? Almost 20%. समझ गए? into 100, हाँ यहाँ पे into 100 है. Say yes guys if you've understood this. अगर ये आपको समझ में आया तो जल्दी से हाँ बोलो. This method, if you don't know the formula, जो भी लोग सोच रहे कि यहाँ पे सक्सेसिव लग सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड सक्सेसिव तब लगेगा जब सेम प्राइस पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. सेम प्राइस पे नहीं हो रहा इधर इंक्रीज डिक्रीज. ठीक है, डन. चलो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हाँ करेक्ट नेहा. नोटा नहीं करेंगे आंसर. ओके चलो ये वाला ट्राई करो. अभी ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 cars are sold at X dollars each. On one of them the dealer earned a profit of 40% and on another he faced the loss of 16%. At the end of the day how much profit or loss did he see in terms of percentage? ठीक है. कोशिश करो. Let's see how many of you all get the right answer here. Chesta says A, 5% profit. All right, Chesta. Vipul says A, very good. Akbar Ali says C, 17.6%. Okay. Jagrati says A. Vivek says D, 24% profit. ठीक है. Shruti says A. Prince says A. All right. Again, what do you have to remember? Special case है, ठीक है, बट क्या केस है? Sold at X rupees, X dollars each. मतलब दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस इक्वल है. सेलिंग प्राइस इक्वल है. एक तरफ आपको 40% का प्रॉफिट मिल रहा, दूसरी तरफ आपको 16% का लॉस मिल रहा. यस, डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाएंगे, ये खत्म कर देंगे क्वेश्चन को. इफ वी डू इट इन द फॉर्मूला व्हाट विल हैपन? इफेक्टिव प्रॉफिट और लॉस इज गोइंग टू बी 100 into x plus y, that is 40 minus 16. ठीक है, -16 क्यों? क्योंकि लॉस है. प्लस 2 times 40 times -16. नेगेटिव को नहीं भूलना है. Never forget the negative part. Okay, 200 plus 40 minus 16. Is everyone clear with this? तो ये क्या है? 40 minus 16 is 24. 24 into 100 is 2400 minus ये क्या हो जाएगा? 16 into 4 is 64. 640. 640 का डबल 1280. So minus 1280 divided by 200 plus 24, 224. आ रहा समझ में आप लोगों को? यस गाइस. सो 2400 से मैं 1200 निकालूंगा तो 1200 हो जाएगा. उसमें से मैं वापस 80 निकालूंगा तो आई विल गेट 1120 डिवाइडेड बाय 224, विच इज हाउ मच गाइस? 5%. है ना? दिस इज once 5 times. Clear everyone? कोई डाउट है इसमें किसी को? नो डाउट्स. 5% और वैल्यू पॉजिटिव में आया, मतलब 5% प्रॉफिट, लॉस नहीं होगा. अदर्स हु सेड 17.6%, आपने सक्सेसिव एप्लीकेशन लगाया है. सक्सेसिव एप्लीकेशन इस सिचुएशन में गलत है गाइस. Successive application would have worked if it's on the same value.
यस, अपने केस में सेम वैल्यू नहीं होगा। क्यों? सेलिंग प्राइस अलग अलग है, सेलिंग प्राइस अलग अलग है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस तो अलग अलग है ना, समझ रहे हो? कॉस्ट प्राइस अलग अलग है दोनों केसेस में। मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड में करके आपको समझाता हूं, समझ में आएगा। देखो ट्रेडिशनल मेथड में करके समझा रहा हूं, ठीक है। पहले केस में प्रॉफिट हो रहा 40% का, मतलब 40% मतलब कितना? 2/5 का प्रॉफिट हो रहा। यस, सो कैन आई से द कॉस्ट प्राइस इन द फर्स्ट केस विल बी सेलिंग प्राइस, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? 7/5, तो सेलिंग प्राइस बाय 7/5 विच इज 7 into 5। यस, ये हो गया अपना पहला कॉस्ट प्राइस। अभी यहां पे इफ यू वांट यू कैन कंसिडर द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एज समथिंग एज अ मल्टीपल ऑफ 7 अगर आपको करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 2 क्या हो जाएगा? सेकेंड केस में अपने को 16% का लॉस हो रहा। 16% मतलब क्या? 1/25 is 4%, so 4/25, करेक्ट? 4/25 है ना, तो 4/25 मतलब क्या? 1 - 4/25 is 21/25 टाइम्स। तो अपना नया कॉस्ट प्राइस, दूसरा कॉस्ट प्राइस विल बी व्हाट? सेलिंग प्राइस बाय 21/25, दैट्स नथिंग बट सेलिंग प्राइस बाय 21 into 25। आ रहा समझ में आपको guys? If I assume let selling price be equal to 21, तो पहले केस में कॉस्ट प्राइस 1 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स कैंसल 15। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 2 25। यस, अब आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 + 25 + 15 40 रुपीज। ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज व्हाट? 21 + 21 42। यस, दोनों में कितना इंक्रीज हो रहा है? प्रॉफिट इज 2 रुपीज ऑन द कॉस्ट प्राइस into 100। समझ रहे हो? दिस इज 1/20 विच इज 5%। क्लियर? अपन क्या कर रहे? वी आर नॉट गोइंग बाय वेरिएबल्स, वेरिएबल से भी जा सकते हैं बट अपन वेरिएबल से नहीं जाके असम्पशन कर रहे हैं। यस, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। मैं नहीं बोल रहा हूं फॉर्मूला रट्टा मारो, फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग ऑल दिस एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। क्लियर एवरीवन? नो चेष्टा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल नॉट कॉस्ट प्राइस। मैंने यहां पे लिखा है, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल है सोल्ड एट x रुपीज x, ठीक है। हाँ अभिषेक, फॉर्मूला वैसे तो बेस्ट है बट अगर याद नहीं रहा तो फिर उसका कोई गारंटी नहीं है। ओके, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड अभिषेक, विपुल, श्रेयसी, सौम्या, सुपर, वेरी गुड। श्रुति, अकबर अली, अदर्स गाइज जिन्होंने 24% या 17.6% बोला, क्लियर है ना? कछु डाउट नहीं है ना? चलो अभी ये वाला ट्राई करके बताओ, लेट्स सी हाउ मेनी कैन आंसर दिस। जे वाला ट्राई करके बताओ। 2 flower pots were bought at the same price by a retailer. She sells one of them at 87.5% profit and the other at a loss equivalent of 7/8 of the cost of a flower pot. What is the overall profit or loss? जल्दी करो, quick. Correct Chesta, yes. If the cost is the same and you are applying it as a back-to-back profit, if it's back-to-back profit or back-to-back loss on the same article, then yes. 2 different articles you can't use successive. एक पे थोड़ा बढ़ रहा है, एक पे थोड़ा बढ़ रहा है, हमें उनका एवरेज निकालना है। So if the cost prices are equal, profit loss percentage अलग अलग है, तो आप उनका एवरेज निकालोगे, profit minus loss by 2. ओके, इन दीज केसेस सक्सेसिव नहीं लगेगा।
ऐसे केसेस में सक्सेसिव नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ जी गाइज, आंसर इसका, जिन्होंने क्वेश्चन सही से पढ़ा है वो आराम से आंसर कर सकते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन में गॉन्टोगोल किया उनका कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड, अंकित बोल रहे हैं नन ऑफ दी अबव। अरे ठीक है, अकबर अली बोल रहे हैं बी 37.5। ओके, विवेक बोल रहे हैं नोटा। अच्छा गाइस, जो लोग नोटा बोल रहे हैं, जो लोग नन ऑफ दी अबव बोल रहे हैं, आंसर भी साथ में भेजो कि क्या है। Prince is also saying D. What is your answer? If you are saying D, then what is your answer? Vipul says B. Okay. क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ओके, अंकित बोल रहे 87.5% का लॉस है। अभी चेंज करके प्रॉफिट कर दिया, चलो ठीक है, प्रॉफिट है। विवेक से 0, अभिषेक से 0, प्रिंसी से 0, चेष्टा से 50% प्रॉफिट। ओके, चलो बहुत सारे आंसर्स आ गए। लेट्स ट्राई दिस नाउ। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 2 फ्लावर पॉट्स वेर बॉट एट द सेम प्राइस। बॉट मतलब क्या, उनका कॉस्ट सेम है। कॉस्ट प्राइस 1 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 2। कंडीशन ध्यान से गाइस। ओके, शी सेल्स वन ऑफ देम एट 87.5% प्रॉफिट, 87.5% प्रॉफिट, and the other at a loss equivalent to 7/8 of the cost. 7/8 in terms of percentage कितना है गाइस? 7/8% में कितना है? सेम ना, 87.5%। तो इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है। कॉस्ट प्राइस इक्वल है, एक तरफ 87.5% का प्रॉफिट हो रहा, दूसरी तरफ बैलेंस आउट हो रहा 87.5% का लॉस। तो योर इफेक्टिव प्रॉफिट और लॉस विल बी इक्वल टू 0%। क्लियर? Yes. So what is your actual answer? D, none of the above, 0%। जिन्होंने 87.5 या 50 या 20 जो भी बोला है प्लीज चेक। 37.5% बोलने वाले भी प्लीज चेक। यस, 12.5% बोलने वाले भी प्लीज 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 चेक। ओके, क्या ये क्लियर है आप लोगों के लिए गाइस? अस्यूम करना है, लेट्स से अपन असम्पशन से कर रहे, ठीक है, लेट्स से असम्पशन से कर रहे, अपना कॉस्ट प्राइस 80 है। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट केस में 80, कॉस्ट प्राइस सेकेंड केस में 80। यहां पे प्रॉफिट हो रहा 7/8 का, यहां पे लॉस हो रहा 7/8 का। यस, तो अपना सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80 प्लस 7/8 70 रुपीज, 150। 80 पे 7/8 में इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब 70 इंक्रीज कर रहा हूं 150। इस पे सेकेंड केस में क्या हो रहा? सेकेंड केस में क्या हो रहा? 80 पे 7/8 कम हो रहा है, मतलब 80 पे 70 कम हुआ 10 रुपीज। अपना ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना? ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज 160। Overall cost price is also 80 plus 80, 160। इसमें क्या है? 0% प्रॉफिट और लॉस। ब्रेक इवन हो गया। लॉजिक है ना गाइस, लॉजिक है ना। मेरे को कहीं पे अगर 87.5% का लॉस हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए सेम अमाउंट पे अगर मेरे को 87.5% का प्रॉफिट हो गया तो मेरा लेना देना एकदम क्लियर हो गया। माई इन्वेस्टमेंट एंड माई रिटर्न्स बिकम इक्वल। यस, चेष्टा, दैट इज व्हाट वी डिड। नो, वी टुक नेगेटिव ओनली। नो, ये जीरो कैसे आया? हाउ डिड वी गेट दिस एज जीरो? इफेक्टिव प्रॉफिट और लॉस विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज माइनस लॉस परसेंटेज बाय 2, करेक्ट?
Yes, which is what? 87.5 percentage minus 87.5 percentage by 2. 0 by 2 is 0 percentage. Clear? यही है गाइस, जो लोग ट्रैप में गिर रहे हैं यहां पे, प्लीज 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 क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, जल्दबाजी में नहीं। यहां पे कोई टाइमर मैं नहीं दे रहा हूं, टाइम के बारे में अपन बाद में देख लेंगे। टाइम वी कैन डील विद दिस लेटर, ओके। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन एक्यूरेसी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी आवर प्रायोरिटी। इसीलिए मैं धीरे धीरे आराम से करा रहा हूं, ताकि अगर एक्यूरेसी अच्छा हो गया तो फिर टाइम अपन आराम से देख लेंगे। यस सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 by 0? अमन आप कहां से आए हो? अमन, 2 by 0 कैन नॉट बी डिफाइंड। 2 by 0 does not exist anywhere on the real number line or even on the imaginary number line. 2 by 0 does not exist. Vipul, Chesta, Soumya are saying D. Others? Yogesh, Akbar Ali, Princey are saying D. Very good. A hardware store sells 2 pipes at the same price. Selling price of the first is equal to selling price of the second. Yes, our condition is sorted. On one it makes a profit of 30%. On the other it suffers a loss of 30%. Find its loss or gain on the whole transaction. यहाँ पे क्या करेंगे अपन? We can either do it by formula. If we do it by formula, what will be the outcome? Effective loss होगा हमेशा, always it is going to be a loss of how much? L square by 100, which is 30 square by 100, 900 by 100. So it will be a loss of 9%. लॉस ऑफ 9%, ओके। गेन नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा। अंडरस्टूड? लॉस ऑफ 9% इज योर आंसर। यू कैन ऑल्सो डू दिस यूजिंग दैट ओल्ड फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला में भी डाल के कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स विल गेट कैंसल्ड आउट, ओके। और यू कैन डू इट बाय असम्पशन, आप असम्पशन से भी कर सकते हो। यस, 30% इज 3 by 10, अगर किसी पे 3 by 10 इंक्रीज हुआ तो उसका वैल्यू क्या हो गया? 13 by 10. 13 by 10 of the cost price is selling price. Yes, तो cost price in the first case is what? Selling price by 13 into 10. दूसरे केस में क्या हो जाएगा? minus 3 by 10, मतलब 1 minus 3 by 10, 7 by 10 of the cost price is equal to the selling price. अपना कॉस्ट प्राइस इन दी अदर केस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस बाय 7 into 10. करेक्ट? यस, अब यहां पे क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को अस्यूम कर देंगे 13 और 7. यस, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 91, तो कॉस्ट प्राइस इन द फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? 7 into 10 70. कॉस्ट प्राइस इन द सेकेंड केस क्या हो जाएगा? 13 into 10 130. यस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ रहा? ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज 70 plus 130 200. ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा? 91 plus 91 182. यस, अंडरस्टूड गाइस? इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। तो यहां पे कितना लॉस हो रहा? लॉस इज 18 रुपीज का लॉस ऑन 200 इंटू 100% में 9% का लॉस। क्लियर?
Okay, it's very important that you understand more than one methods of doing the same question. एक क्वेश्चन को एटलीस्ट दो मेथड में करना सीख लो. अगर मेथड ए काम नहीं आया तो मेथड बी आपके स्लीव में रहेगा, आप कभी भी उसको निकालो, यूज कर सकते हो. ठीक है, वेरी गुड. चलो अगला क्वेश्चन. अच्छा, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफर चल रहा, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे 3 मंथ्स का फ्री, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे 3 मंथ्स का फ्री. लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सुराना लाइव यूज करोगे इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा. यस, जल्दी से ले लो सब्सक्रिप्शन. प्लस के प्राइजेस ये रहे, 12 मंथ्स पे 3 मंथ्स, 24 मंथ्स पे 3 मंथ्स. फटाफट से ले लो सब्सक्रिप्शन सो दैट यू कैन क्रैक कैट 2021 एंड ऑल्सो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, चलो अभी ये वाला ट्राई करो, पढ़ो. थैंक यू सो मच प्रिंसी. माय हैंड राइटिंग इज वेरी गुड. थैंक यू अभिषेक. Sir, can you quickly explain the longer solution once? Ria, can you quickly rewind the lecture once? You can see it how many times you want. थोड़ा सा उसको rewind करोगे तो आप उसको कितनी भी बार देख सकते हो. Thank you so much, Aman. आपने कलर करा है ना हेयर में? क्या करोगे भाई जान के अमन, क्या करोगे ये इंफॉर्मेशन को रख के? मतलब आपको क्या लगता है कि IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि हैज अमित सुराना कलर्ड हिज हेयर? इफ यस देन व्हाट कलर, इफ नो देन व्हाई? क्यों भाई, क्यों जानना है? कुछ भी. सौरभ, विपुल, Saurav, Akshay, Soumya are saying B. Ria is saying B. What are the daily timings of this class? Ria, 12 PM every day. Monday to Saturday, 12 PM. इसी चैनल पे Unacademy Cat. Yes. Shreyashi says B, Vineet B, Neha B, Arun B. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से पढ़ के. A bottle of red wine is sold at a profit of 10%. तो रेड वाइन क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट ऑफ 10%. Bottle of white wine is sold at a loss of 20%. Okay. If both were sold at the same price, मतलब क्या? Selling price of red is equal to the selling price of white. Then what is the ratio of the cost of the bottles? Yes, red to white का cost क्या? मतलब अपन से क्या पूछ रहे? Cost price of 1 by cost price of 2. ये अपन डायरेक्टली कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर रख के, है कि नहीं? Selling price in the first case is what? 100% of cost price plus 10% of cost price gives us what? 1.1 times of the cost price. Yes, or cost price can be given as 1.1 times, sorry, selling price of 1 by 1.1. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 2 दोनों इक्वल ही है तो नहीं लाएंगे, 1 2 दोनों इक्वल है. ठीक है, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज 100% माइनस 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, विच विल गिव अस सेलिंग प्राइस बीइंग इक्वल टू 80%, दैट इज 0.8 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस. और इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज सेलिंग प्राइस बाय 0.8. अभी अपन ये वाला में डायरेक्ट लगाएंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 to 2 इज व्हाट? SP by 1.1 divided by SP by 0.8, which will give us what? SP cancel हो जाएगा, इनका reciprocal हो जाएगा. 0.8 by 1.1 is equal to 8:11. Got it? जिन्होंने भी B बोला है 11:8, what you got me is white is to red. हमें white is to red नहीं चाहिए, हमें white is to red नहीं चाहिए, हमें red is to white चाहिए.
योर आंसर इज 8/11 ऑप्शन ए नॉट बी। ठीक है, जिन्होंने भी बी बोला है एक बारी प्लीज चेक कर लो। यस नेहा, कौन से फॉर्मूला से क्या आंसर नहीं आया? नेहा, कौन से फॉर्मूला से क्या आंसर नहीं आया? इसमें फॉर्मूला का कुछ सीन है ही नहीं, ना तो ये इफेक्टिव प्रॉफिट पूछ रहे ना इफेक्टिव लॉस पूछ रहे। ये भाई साहब बेचारे ये पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ द कॉस्ट पूछ रहे हैं। इसमें अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वैसे अगर आपको फॉर्मूला इतना ही पसंद है, आपको फॉर्मूला इतना ही पसंद है, देन प्लीज नो दैट cost price of 1 by cost price of 2 will always be equal to 100 plus whatever profit 1 profit 2 जो भी है 100 plus y by 100 plus x by 100 by 100। यहां पे x अपना 10% है, y -20% है, बस ये लगा लो, हो गया। 100 plus y that is 100 minus 20 by 100, या 100 ना भी हो तो चलेगा, एक वैसे भी कैंसिल हो ही जाए, डिवाइडेड बाय 100 plus 10 जो कि कितना 80 by 110 which is 8:11। ठीक है, मतलब अगर आपको इतना प्रेम हो गया है फॉर्मूला से, सर फॉर्मूला, रे वाह सर फॉर्मूला पे मेरा एकदम बचपन से क्रश रहा है सर, a+b द होल स्क्वायर पे तो मैं फिदा हो गया था सर, देन इन दैट केस ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर इन मोस्ट केसेस लॉजिक इज बेटर देन इक्वेशंस और फॉर्मूला। ठीक है, यस चलो लास्ट क्वेश्चन। इसमें इफ आई टेक SP 100 उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, हो सकता है। विपुल आपने मेरे को बोला SP को 100 लूंगा, यू सेड SP इज 100, फिर आप SP पे प्रॉफिट और लॉस लगा रहे, ये कैसा न्याय है भाई? ये कैसा न्याय है? इसको पूछने वाला कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? हाँ हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। अरे कोई नहीं विपुल, मैं मजाक कर रहा था, वैसे दुनिया में तो बहुत अन्याय हो रहा है, कौन किसको क्या पूछ रहा। अच्छा इसमें गाइस आंसर चॉइस जो है गलत है, हाँ सॉरी, इसमें आंसर चॉइसेस जो है गलत है, ये टीटा क्वेश्चन है। चलो दिस इज अ टीटा क्वेश्चन, टेक्स्ट बॉक्स है, आंसर बता, परसेंटेज यहीं पे है। ठीक है, बताओ आंसर। सफरनामा, आपको मैंने अलार्म क्लॉक बनने को बोला था क्या? आपको मैंने वो स्कूल में वो बेल नहीं बजाते, घंटी नहीं बजाते, वो बनाया था क्या? क्यों भाई? इज देयर बेटर कॉलेजेस टेक एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्जाम? अमन ये कैसा क्वेश्चन है भाई? बेटर कॉलेजेस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, अरे वाह वेरी नाइस। अमन मतलब फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, वही चल रहा है इधर। हाँ भाई आंसर सेवन परसेंटेज लॉस। ठीक है, आंसर्स आ रहे 7% लॉस। ठीक है, अदर्स? सर आपने लंच कर लिया? सर प्लीज साइलेंस फॉर वाइल, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन। संजीव देयर इज अ म्यूट ऑप्शन भाई,
बता देता हूँ, मतलब आप जैसे लोगों को शायद पता नहीं होगा अबाउट एडवांस टेक्नोलॉजी दैट द वर्ल्ड हैज गिवन अस टू लो लाइफ्स. इट्स कॉल्ड म्यूट. हैं, कर लो. या गाइस, आंसर्स एनीवन? Aman also says 7%. Vipul says 2.5% loss. Okay. सफरनामा भाई, पहले से बहुत भूख लगी है, ठीक है, भूख जो है सर पे चढ़ गया है, अब नहीं, बस. चलो लास्ट वाला, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है गाइस. Selling price 1 is equal to selling price 2 if both were sold at the same price. Yes, in one there is a loss of 12.5%, in the other there was a profit of 6.25%. Direct plug it in the formula, get your answer, है ना. Effective profit or loss will be equal to what? Your direct formula पे application. Yes, 100 into minus 12.5 plus 6.25 is minus 6.25 plus 2 into minus 12.5 into 6.25 divided by 200 minus 6.25. ठीक है? Are you getting this guys? Yes, इसमें बस यही है कि कैलकुलेशन आपको करना है, that's all. Yes. So 12.5 into 6.25 is 78.125 into 2 is minus 156.25. This is 100 minus 6, that is 94, so 93.75 divided by 200 minus, which is 193.75. ठीक है? 93.75 minus 156.25 divided by 193.75. कुछ तो गड़बड़ आ रहा. Something is wrong here. What is wrong? Something doesn't seem right. 6.25 into 2, 156.25 minus 100, 6.25 is 62.5. Something doesn't feel right here. 62.5 by 200 minus 6.5, ये तो 1 से भी कम आ रहा वैल्यू गाइस. Oh sorry, yeah, sorry, 100 into 6.25 है. छी. This is 625, huh? Sorry, my bad, mea culpa, sorry guys, sorry, apologies, humble apologies. So it is minus 625 minus 156.25 divided by 193.75, okay, which is approximately minus 4.03%. Yes, so your answer has to be 4.03% का loss. Clear everyone? Yes. सौरभ कुमार फॉर्मूला बोला था, फॉर्मूला में एक बार चेक कर लो. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 4% लॉस. Yes guys, this is our last question. Upcoming event today 8 p.m. just like yesterday today at 8 p.m. we are doing another practice lecture on Unacademy app. Free lecture है. Yes, today 25th of August Wednesday को 8 p.m. लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, अभी से एनरोल कर लो. Yes, the link is in the description. Enroll now itself. When you enroll, don't forget to use the code Surana Live if you are enrolling for the first time. This is a free class. You don't have to pay for this, but this is mandatory for anyone who is mandatory for backbencher batch guys. Okay,
यस अगर आप बैक बेंचर्स बैच में हो दिस इज मैंडेटरी. अब तक में अपन ने जितना भी परसेंटेज में पढ़ा है वी विल बी practicing them today. Yes, these are all the special class features. Yes, there will be polls. You can raise a hand if you have a doubt. There you can download the lecture notes directly, use them as your reference. Yes, also you can opt for the iconic subscription. अगर आप subscription लेने का सोच रहे हो तो you can go for the iconic subscription where you get personalized learning experience. आपके concepts, strategies, doubts, everything will be taken care of. Yes, these are all the people who cracked CAT 2022 by taking the subscription. And these are just a few of many. Okay, तो फटाफट से subscription ले लो. And you can also opt for being a campus ambassador for Unacademy. These are the details for it. If you have any more doubts, you can go visit the website. Okay, thank you so much guys. I will be sharing the link on the Telegram group. I will be sharing the link for the next class on Telegram group. I'll be sharing the notes for today. Okay, all right guys, thank you so much. Bye bye Akshay, bye bye Shreyashi. 8 p.m. Jitesh, 8 o'clock in the evening. Thank you so much Vipul. नहीं जरूरी नहीं है विनीत, जरूरी नहीं है. विवेक just assume, no, 100 assume करके try. Okay, you will get the answer, don't worry about it. All right guys, bye. Thank you so much. Have a great afternoon. I'll see you in the evening. Keep learning. Let's crack it. Don't forget to hit like on this video.